السلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹس، آج میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں آئی بی کی GD11 اور اس کے علاوہ OM11 کا ایک فاسٹ پیپر. اسی پیپر کا فیلڈ رن اور ٹیسٹ سلیبس تو میں بتا چکا ہوں، اور اس کے علاوہ اسی ویڈیو میں ٹیسٹ پریپریشن کے حوالے سے بات ہوگی. تو چلتے ہیں پیپر کی جانب، پیپر شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے the first way was revealed upon the holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی 610 AD کو نازل ہوئی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی. سوال نمبر 2 ہے which prophet was able to talk with animals and jinns. animals اور جن کے ساتھ کون پیغمبر باتیں کرتی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام تھی. سوال نمبر 3 ہے how much camels were sacrificed on the occasion of حج بائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ قربان کی تھی. سوال نمبر 4 ہے ورڈ قرآن appeared in ہولی قرآن for how many times. قرآن میں قرآن لفظ تقریباً 70 مرتبہ آیا ہے. بی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 5 ہے name the person whose house became the center of preaching of Islam. کس کا ہاؤس بنایا گیا تھا سینٹر آف پریچنگ آف اسلام؟ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سوال نمبر 6 ہے خطیب الانبیاء، یہ ٹائٹل ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا. سوال نمبر 7 ہے the study of religions. ریلیجن کی اسٹڈی کو تھیالوجی کہا جاتا ہے. بی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 8 ہے اور اصحاب صفہ. اصحاب صفہ وہ غریب لوگ تھی جو کہ مدینہ ہجرت کر چکی تھی، مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکی تھی، تو وہ مہاجر تھی. بی آپشن دیکھیے مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. وہ اسٹیڈ نیئر مسجد نبوی. بی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 9 ہے حضرت ہارون علیہ السلام میٹ ود ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم آن ففتھ ہیون. حضرت ہارون علیہ السلام سے معراج شریف کی موقع پر ملاقات 5ویں آسمان پر ہوئی. پہلی آسمان پر ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری آسمان پر ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. اس کے علاوہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بھی دوسری آسمان پر ملاقات ہوئی. اگر تیسری آسمان کا پوچھا جائے تو تیسری آسمان پر ملاقات حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی. سوال نمبر 10 ہے وچ سورہ کنٹینز انفارمیشن اباؤٹ وضو تیمم. وضو اور تیمم کے احکامات سورہ المائدہ میں بیان ہوئی ہے. آگے کے سوالات جنرل نالج اور پاکستان اسٹڈی کے. سوال نمبر 11 ہے فرسٹ ٹی وی اسٹیشن آف پاکستان. 1964 کو بنی تھی پہلی ٹی وی اسٹیشن لاہور میں. پہلا آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 12 ہے بالو کی بیراج یہ راوی ریور پر ہے لاہور میں. سوال نمبر 13 ہے فرسٹ انگلش میوزک چینل آف ریڈیو پاکستان. فرسٹ انگریزی میوزک چینل آف پاکستان کہاں بنی؟ اسلام آباد میں، اور اس کا نام پلینٹ 94 میں تھا. سوال نمبر 14 ہے what document was firstly drafted to give face to constitution making process. آئین بنانے میں مدد لیا گیا آبجیکٹیو ریزولوشن سی. ڈی آپشن ٹھیک ہے. ویورز یہاں پر یہ تمام سوالات ہر قسم کی جاب ٹیسٹ میں آ سکتی ہے، اور تمام ٹیسٹوں میں یہ آ رہی ہے، تو آپ دوستوں نے ہماری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنی، اسی ویڈیو کو آخر تک دیکھنی ہے. سوال نمبر 15 ہے واٹ از دا ادر نیم آف محمد علی بوگرا فارمولا. محمد علی بوگرا فارمولا کا دوسرا نام کانسٹیٹیوشنل فارمولا تھا. ڈی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 16 ہے وہ ایبروگیٹڈ 1956 کانسٹیٹیوشن. 1956 کا آئین منسوخ کیا تھا صدر سکندر مرزا نے. سی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 17 ہے وچ چیف جسٹس آف پاکستان ڈائیڈ ان ہز آفس ان جسٹ 9 days آفٹر ٹیکنگ اوتھ. 9 دن بعد حلف لینے کے بعد کون سا چیف جسٹس تھا جو کہ آفس میں وفات پا گئی تھی؟ محمد شہاب الدین تھی. سی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 18 ہے نیشنل فائنینس کمیشن NFC ایوارڈ واز کانسٹیٹیوٹیڈ انڈر وچ آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن. NFC ایوارڈ کا انعقاد کیا گیا تھا انڈر آرٹیکل 160. NFC ایوارڈ 160 یاد کر لیجیے. یہاں پر اسی بھائی نے یہ کویشچن غلط کیا ہے، 170 غلط ہے. NFC ایوارڈ 160. پہلا آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 19 ہے who was the first چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان. پاکستان کی پہلی چیف الیکشن کمشنر FM خان تھی، اور یہ کویشچن بھی غلط مارک کیا گیا ہے. پہلی چیف الیکشن کمیشن FM خان، اور دوسری چیف الیکشن کمشنر اختر حسین تھی. سوال نمبر 20 ہے وین سوئی نادرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ SNGPL یہ کمپنی بنی تھی 1963 کو. بی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 21 ہے وچ ٹیسٹ از اپلائڈ ٹو انالائسس آف ویریئنس انووا.
टी टेस्ट और इसके अलावा जेड टेस्ट। तो पहला ऑप्शन ठीक बनता है। सवाल नंबर 22 है अ कैमरा यूजेस अ डैश। यहाँ पर याद कर लीजिए कैमरे में कौन सी लेंस होती है, कन्वेक्स लेंसेज। अ कैमरा यूजेस अ कन्वेक्स लेंस टू फॉर्म एन इमेज ऑन अ पीस ऑफ फिल्म एट द बैक, कन्वेक्स लेंसेज। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 23 है इन ह्यूमन बॉडी हार्ट फंक्शन इज ए सोर्स ऑफ। ह्यूमन बॉडी में हार्ट जो है ये ब्लड सर्कुलेशन का काम करती है, तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ चार्ज। बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 24 है एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर गैस प्रेशर। गैस प्रेशर के लिए मैनोमीटर इस्तेमाल की जाती है। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 25 है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर। एवरेज यानी औसत हम किस तरह मालूम करेंगे। यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर एक खिलाड़ी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक खिलाड़ी है, एक मैच में 50 रन बनाए हैं, दूसरे में 60, तीसरे में 100 रन बनाए हैं। तो इसी तरह उनके तमाम रन्स को जमा करेंगे और कितने मैचेस के लिए, एक में 50, दूसरे में 60 और तीसरे में 100 रन बनाए हैं, तो 3 मैचेस के लिए है। तो तमाम रन्सों को हम जमा करेंगे और जितने मैचेस के लिए है उस पर डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 1 जमा 2 जमा 3 इन आदात को हम जमा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 150 तक। जब 150 तो ये 11,325 आ जाएगा। अब 11,325 को 150 पर डिवाइड कीजिए तो इसका आंसर 75.5 आ जाएगा। सवाल नंबर 26 है व्हाट इज़ द टोटल ऑफ 2 जमा 2 जमा 2 ज़रबे 2 मनफी 2। आसान सा क्वेश्चन है, 32 जम वाला फार्मूला याद कर लीजिए। पहले ब्रैकेट वाला अमल हम करेंगे, अगर ब्रैकेट ना हो तो फिर तकसीम, फिर ज़रब, फिर जमा और आखिर में मनफी। तो यहाँ पर ज़रब जो है 2 ज़रबे 2 ये 4 आ जाएगा और 2 जमा 2 ये भी 4 आ जाएगा। तो 4 और 4 ये 8 होगा। 8 से जब 2 माइनस करेंगे तो इसका आंसर 6 आता है। यहाँ ऑप्शन में गलती की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 27 है हु इज़ कंसिडर द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर एडम स्मिथ को कहा जाता है। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 28 है इनपुट्स आर कंबाइंड विद टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस आउटपुट्स। द फंडामेंटल इनपुट फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और लैंड, लेबर एंड कैपिटल। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 29 है द सेंट्रल रोल ऑफ मार्केट इज टू डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ गुड्स। डी ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 30 है आसान सा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का है, अब दोस्तों के पेपर में भी आ सकता है। व्हाट इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा सीट। यहाँ पर इसकी मीन मालूम करनी है 4, 5, 0, 10, 8 एंड 3। तो इसका मीन हम किस तरह मालूम करेंगे, 4 जमा 5 जमा 0 जमा 10 जमा 8 जमा 3। इसको जमा कीजिए तो इसको जमा करने के बाद हमारे पास इसका आंसर 30 आ जाएगा। और ये तादाद कितनी है, 4, 5, 0, 1, 8 और 3, ये टोटल 6 है। तो 30 को डिवाइड कीजिए 6 पर, 6 पंजा 30, तो इसका मीन हमारे पास 5 आ जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। सवाल नंबर 31 है चूज द मीनिंग ऑफ ईडियम टू ब्रेक आइलैंड्स। टू ब्रेक आइलैंड्स का मतलब है स्टर्न लेना। तो सी ऑप्शन देखिए टू एंगेज इन अ कंपटीशन। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 32 है रूल ऑफ थंब, इसके मानी क्या है। रूल ऑफ थम्स के मानी है वो एक्सपीरियंस और जो कि नॉलेज के बगैर हो और अब हिस्ट्री में है। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 33 है द वर्ड आइसोलेशन इज सिमिलर टू। आइसोलेशन के मानी तन्हाई की है, इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड यानी सिनोनिम सॉलिट्यूड बनेगा। सॉलिट्यूड की मानी भी तन्हाई के है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप दोस्त किसी भी जॉब टेस्ट के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो यूट्यूब पर इस तरह सर्च कीजिए इंग्लिश MCQs बाय यूसी लर्निंग टीम, या जनरल नॉलेज के लिए इस तरह सर्च कीजिए GK MCQs बाय यूसी लर्निंग टीम। आप दोस्त इसी तरह सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर के MCQs के लिए कंप्यूटर MCQs बाय यूसी लर्निंग टीम और पाकिस्तान स्टडी के लिए पाक स्टडी बाय यूसी लर्निंग टीम, आप दोस्त इसी तरह भी सर्च कर सकते हैं। सवाल नंबर 34 है he said to me I expect you to attend the function change variation। तो डी ऑप्शन देखिए he told me, he said to me कन्वर्ट हो जाएगा he told me that he expected me to attend the function। डी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 35 है सिनोनिम ऑफ डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट के माने मोड़ने या वापस मुनाकिस होने की है। डाइवर्ट इसका सिनोनिम है। सवाल नंबर 36 है दे प्रोबेबली वॉन्ट अटेंड लेक्चर टुमारो चेंज द वॉइस। अटेंड जो है ये अटेंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा और वॉन्ट
बी लगेगा। तो बी ऑप्शन देखिए, द लेक्चर प्रॉबेबली वोंट बी अटेंडेड बाय द। सवाल नंबर 37 है, इफ आई हैव मनी, अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं क्या करूँगा। ये फ्यूचर टेंस है, आई विल परचेज इट टुमारो, तो मैं इसे कल खरीदूंगा, विल परचेज लगेगा। सवाल नंबर 38 है, ही मेट अ मैन वो लिव्ड इन यूएसए लास्ट ईयर, व्हाट इज़ वो क्या है। इसी जुमले में वो इसमें ज़मीर है, प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 39 है, कैचिंग द अर्लियर ट्रेन विल गिव अस द चांस टू डू सम शॉपिंग, चांस लगेगा। सवाल नंबर 40 है, आई हैवंट सीन यू डैश अ वीक, डेफिनेट पीरियड के लिए दोस्तों फार लगेगा, आई हैवंट सीन यू फॉर अ वीक। आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी, इसी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। यहाँ पर फार लगेगा, आई हैवंट सीन यू फॉर अ वीक। हमारे पास GD11 और इसके अलावा OM यानी ऑफिस मैनेजमेंट BPS 11 के इसी ओरिजिनल पेपर के आगे के 10 सवालात कंप्यूटर साइंस IT की है। आप दोस्तों के पेपर में IT यानी कंप्यूटर के सवालात भी आएंगे। सवाल नंबर 41 से, विच इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम रन ऑन अ कंप्यूटर व्हेन द कंप्यूटर बूट्स अप, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 42 से, द डेट एंड टाइम डिस्प्ले ऑन, डेट और टाइम कहाँ पर डिस्प्ले होती है। ये सवाल दोस्तों मैं अक्सर पेपर हल कर देता हूँ, फास्ट पेपर, बहुत सारे पेपर, तकरीबन 1500 से ज़ायद पेपर में हल कर चुका हूँ। ये सवाल बार बार आ रहा है, तो द डेट एंड टाइम डिस्प्ले ऑन टास्क बार, ये ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 43 से, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम रीड एंड रिएक्ट्स इन एक्चुअल टाइम, रियल टाइम सिस्टम, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 44 से, यहाँ पर फॉर्मेटिंग लगेगा, फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 45 से, द कंप्यूटर प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, प्रोसेसर मुश्तमिल होता है कंट्रोल यूनिट और ALU पर, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 46 से, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग मशीन लैंग्वेज, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 47 है, सेवरल कंप्यूटर लिंक टू अ सर्वर टू शेयर प्रोग्राम्स एंड स्टोरेज स्पेस इज कॉल्ड नेटवर्क, ए ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क, मोडेम इस्तेमाल नहीं की जाती, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 49 इस तरह का है, अ टॉप बॉटम रिलेशनशिप अमॉन्ग द आइटम्स इन अ डेटाबेस इज एस्टेब्लिश्ड बाय हायरार्किकल स्कीमा, पहला ऑप्शन ठीक है। और हमारे पास IB की GD11 और OM11 की सी पेपर का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 50 है, related fields in a database are grouped to form a data record, related field in a database are grouped to form a data record, बी ऑप्शन ठीक है। तो व्यूअर्स ये रहा IB का मुकम्मल पेपर। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसके अलावा हमारे चैनल UC लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए।